So today is the 10th session of Ashtavakra Gita, and we will start with our invocation, which is to do with the Sat Chit Ananda Tattva. Naman us Sat Tattva ko, Sandhini Shakti, the isness. Naman us Chit Tattva ko, Samvit Shakti, the consciousness on which depend all our functional plane experiences. Naman us Anand Sindhu ko, Alhadini Shakti, which gives meaning and purpose to life. The Laksha of happiness, the goal of happiness, that is embodied in the Anand aspect of Sat Chit Anand. That is called Alhadini Shakti. What is consciousness, Shalini? Samvit Shakti. Samvit, yes. What Samvit. is Sat? What is the Sat Shakti? Samvit. Sandhini. Sat Sandhini. Sandhini. Chit is Samvit and Anand is Aladini. Alhadini. Everybody has got this straight. Everybody who's attending this class, the three are different names for Sat Chit. Is this clear to everybody? Yes. Sat is Sandhini. Chit is Samvit. Samvit. And Anand is Alhadini. Alhadini. Yes. Okay. So, अष्टावक्र गीता करते हुए जरूरी है कि हम कुछ समय अपनी एक्सपैंडेड आई के साथ बिताएं. इसलिए ही होमवर्क दिया था. कितना we are on the 11th shloka and we will be of the second chapter and we will be doing from 11 to 16 shlokas. But I want to bring your attention again to the 8th shloka of the second chapter, which says, Prakash Mera Nij Swarup, luminosity, the illumining, the luminous aspect. Prakash Mera Nij Swarup, us jyoti se nahi. I am not different from that luminosity. मेरा स्वरूप जड़ नहीं है. मेरा स्वरूप जड़ नहीं है. It is not gross and it is not dead. नाशी नहीं है. मेरा जो असल स्वरूप है, if it is the luminosity, it can never be destroyed. मैं भिखारी नहीं हूं. मेरा स्वरूप चित प्रकाश है. सुसूक्ष्म है. एक बार सूक्ष्म, सटल. सूक्ष्म से भी सूक्ष्म के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? सुसूक्ष्म. It cannot be further divided. जैसे बाल है, you will finally come to that space where you cannot divide it any further. That much is called susukshma. मेरा स्वरूप प्रकाश है. प्रकाश ही मेरा निज है. स्वरूप का क्या मतलब? मैं ही निज हूं. मैं निज में प्रकाश. अपने आप में मैं प्रकाश हूं. जैसे सोना कह रहा है कि सोने के अलावा मैं कभी कुछ नहीं हुआ. पर जल जो है वो भूल गया और उसे लगा कि मैं लहर हूं. यह एक गलती थी क्योंकि उस समय भी वो जल ही था. जब वो लहर बना तब भी वो जल ही था.
अब मेरा भ्रम टूट गया है और मालूम पड़ गया है कि मैं जल ही था, जल ही हूं और जल ही रहूंगा. हाँ, past, present and in future also I can be nothing other than water. Now let us come to where we had left. वो जो था ना, उसके पहले उसके बाद में श्लोक आया, सीपी में चांदी का भ्रम हो गया. सीपी में चांदी का भ्रम हो गया. तो एक थर्ड पर्सन को भ्रम हो सकता है, लेकिन सीपी को कोई भ्रम नहीं होता. जैसे जल को तो थोड़ी सी देर के लिए भ्रम की बात हमने करी, लेकिन by and large that absolute ultimate tattva can never be mistaken about its own reality. You understand? तो सीपी को में कोई भ्रम नहीं है चांदी होने का. इसी प्रकार जनक में अब कोई इल्यूजन नहीं. We are coming to Janak. Through these examples, we have come to Janak, who has suddenly realized that I am not what I had thought I was. Janak ke, the words that Janak has selected to express his own interiority, we will begin to feel that he has experienced his reality. उन्होंने तत्व को आत्मसात कर लिया है. एक बात समझने की है, हम लोग क्या करते हैं, जनक ने तो एकदम से उसको कैच कर लिया अपनी रियलिटी. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग में है कि हमको साधना में लगना है. साधना क्या है? साधना है लाइक पॉलिशिंग द मिरर. मिरर by itself cannot know the truth. Something from outside has to come and reflect on it. Then it can intuitively realize this is my truth. You understand? So all sadhana is like what? It is like polishing the mirror. All sadhana is like polishing the mirror. तो पॉलिश करना नहीं है, हमको मिरर को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है. कितना भी मिरर पॉलिश करो, जो अल्टीमेट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आती है, वो इतनी बड़ी चीज अपने दिल में घर कर जाती है. That is only possible by Guru's grace. मिरर बाहर के रिफ्लेक्शन को कैच करता है, पर अद्वैत में जो कैच करना है वह अपना आप है. वह एक भीतर की अनुभूति है. उसको अपना सत्य करके we have to उसको जैसे कि accept that. We have to get ourselves out of the hypnosis and accept that the inner reality. And let me tell you, इससे ऊंचा और कोई मेडिटेशन आप कर नहीं सकते except that kind of meditation when you are face to face with your own reality. You understand? Now I am coming to the 11th श्लोक with which we are beginning today's session. जनक कह रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर तृण तलक. तृण मतलब तिनका. रोक्साना, what is तृण? तिनका. Yeah, twig. छोटा सा ब्लेड ऑफ ग्रास. ब्रह्मा से लेकर तृण तलक होवे जगत का नाश. मेरा कभी नहीं नाश है, मुझको ही नमस्कार. That tattva which I have realized as my own self, that is the divinity. The only divinity in this entire world. कहीं अंतःकरण की गहराई में जनक को अपनी
असलियत का एहसास हो गया। वह जो नूर हर समय रोशन रहता है, नींद के समय क्या, मौत के समय क्या, सुन लीजिए आप, मौत के समय भी वो नूर कभी नहीं मरता है, जो रहता ही रहता है वह मेरा अपना आप है। इसलिए मेरी तो कभी मौत हो ही नहीं सकती। मैं और कौन से देव को पूजूं, वह ही पूजनीय है, मेरा आत्मन है, अपना आप है, इसलिए मेरा मुझको ही। और देखिए, हमारी ये जो नमस्ते है, ये कितनी कितनी गहराई को व्यक्त करती है। मैं अपने भीतर भी उस डिविनिटी को प्रणाम करता हूँ और साथ में ये भी याद दिलाता हूँ कि सामने वाले के अंदर वही डिविनिटी है। तो अपनी डिविनिटी और उसकी डिविनिटी मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ, है ना। और आपको एक बात बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी गए थे फॉर एनी वन ऑफ दीज ओकेजन्स, व्हाट हैड हैपेंड इन द टाइम स्क्वायर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, there was a Sufi dance where at least 20 people wearing those swirling gowns were swirling away. And what were they reciting? In Hindi they were reciting so that everybody would understand. आदि के समय में न एग्जिस्टेंस था, न नॉन एग्जिस्टेंस था, और ये रिसाइट करते हुए और उन्होंने ये कहा कि वो ही तत्व सबके भीतर है, तो इसलिए मैं उस देव को छोड़कर और किसको पूजूं, सेम शब्द, और किसकी उपासना करूं। ये वो लोग गा रहे हैं, उस तत्व को छोड़ करके, उस देव को छोड़ करके मैं और किसकी उपासना करूं। और ये थॉट इन भारत का टाइम स्क्वायर में गाया जा रहा है, इसके ऊपर सूफी डांस हो रहा है, और अंत में भारत माँ की जय इस तरह के उद्घोष हुए और उससे ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। इतनी खूबसूरत बात हो गई। तो वन कैन से history was created that day when Sanatan Dharma was held so high in the Times Square of New York City. Would you agree that history was created? Would you all agree? Huh? तो इसलिए मुझको ही मेरा नमस्कार है। वह अपने देह को नमस्कार कर सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इज ही डूइंग नमस्कार टू हिज ओन बॉडी? नो। देह तो छिलके से भी कम है, देह तो एक ग्रेन ऑफ सैंड है। ग्रेन ऑफ सैंड में क्यों कह रही हूं, जैसे जैसे इसको धारण किया, इस बॉडी को जैसे जनक ने धारण किया है, वैसे जनक कह रहा है मैंने ही तो सबको धार रखा है। तो ये एक लाइफ, ये एक बॉडी, इज इट एनीथिंग मोर देन द ग्रेन ऑफ सैंड? बिकॉज जनक हैज फेल्ट that he is the substratum not only of the human species, but of all that has ever walked this earth. Jad or Chetan, even the inanimate things, the substratum of everything. So, is this anything more than a grain of sand? I'm asking you. Can it be anything more? जैसे मेरे सिर का एक बाल टूटता है, तो क्या मैं रोने को बैठता हूं? When you lose one strand of hair, do you sit to cry? मैं किस किस की मौत पर रोऊं और किस किस के जन्म पर नाचूं? मैं अपने आप में स्थित हूं और परम आनंद में हूं।
अभी देखिए how we are connecting this to the Yog Vashisht which we have just read. I will explain to you the technique. I am now going to explain to you a beautiful technique which will take you closer to your own reality. मैंने इस जगत को उभरते और मिटते देखा है. Who's saying this? जनक. He's saying ब्रह्मा से लेकर तीन तक होवे जगत का नाश, मेरा कभी नहीं नाश. तो मैंने इस जगत को उभरते और मिटते देखा है, पर अपने को मिटते नहीं देखा. जनक, ज्ञान कह नहीं रहा है, वो अपनी अनुभूति आपके साथ शेयर कर रहा है. His inmost experience he is sharing with us. मैंने अपने में जगत को लीन होते हुए देखा है. What did that Raja do when he woke up from his dream? He saw that jagat which he had created during his sleep fold up in him, in his own self. Where did it dissolve? जैसे सपने खो जाते हैं, जैसे सपने खो जाते हैं, वैसे ही ये जगत का सपना भी खो जाता है. अब देखिए, नाउ आई एम टेलिंग यू द साधना. सपने से अच्छी और कोई साधना नहीं है. ध्यान से सुनिए, इसको आप प्रैक्टिस में ला सकती हैं. जब आपको सपना दिख रहा है, ठीक है, थोड़ी देर दिखता है और फिर जब वो सपना खत्म हो जाता है, that is the time about which you have to be conscious and alert. तब देखो सपना खोया है, मैं नहीं खोया, पर हम नए सपने को पकड़ लेते. सावधान हो, अगर हम उस समय सावधान हो, तो मैं अपने को साक्षी, फाउंडेशन, अधिष्ठान देखो. If I am alert and aware at that time when I wake up from sleep, then I can catch my Sakshi Swarup. Acha. Now suppose you can't do that. Now you are going to sleep in the night. So you tell yourself. अपने आप से आप पूछिए, आज अगर सपना आया तो उसे कौन देखेगा? Ask yourself when you are going to sleep, आज अगर मुझे सपना आया तो उस सपने को देखने वाला कौन है? वहां पर आप एक और अपना आप बना लेते हैं जो कि ड्रीम के कोई वो रोल प्ले करता है. उसको देखने वाला कौन है, ये हमको. Then we can catch the Sakshi within us. स्वप्न का अंत मैंने देखा, स्वप्न भी मैंने देखा. तो what is the conclusion? मैं चैतन्य साक्षी हूं, मैं ही परम तत्व हूं. लिख लीजिए कि सपने का अंत मैंने देखा, सपना भी मैंने देखा, मैं चैतन्य साक्षी हूं, मैं ही परम तत्व. ठीक है? Shall I tell you a second technique? Suppose you don't even bother to dream. Suppose you don't even bother to go to sleep. You are sitting. You are sitting nicely in the chair. Now you start imagining. Let the imagination fly. Go anywhere. Sometime the imagination will stop. It will fold up.
Imagine that you have become a very big person. राजा महाराजा बन गए हैं. कल्पना करते चलो, कभी तो कल्पना का अंत होगा. Become alert and see it dissolving. Where did it dissolve? In you it started. In you it dissolved. Imagination happened in the mind. The world is a product of the mind. ये हम लोग, this conclusion we have reached, that the world is a product of the mind. Then how can it be real? It is a product of the mind. How can it be real? Only Chaitanya is the reality. I being that Chaitanya, I alone am the ultimate truth. Now write down one more sentence. I alone am the reality. Everything else is false. Mithya. I am the knower of the reality. I am the Sakshi. अब एक आपको चौंकाने वाली बात कह देती हूँ, बहुत ही झकझोरने वाली बात. जब भी भक्तों ने भगवान के दर्शन किए हैं, उस दर्शन से हमको बहुत खुशी मिलती है, पर वह असलियत नहीं है. भगवान केवल देखता है, दिखता नहीं. पद्मा जी प्लीज राइट डाउन. भगवान केवल देखता है, साक्षी है. भगवान दिखता नहीं. अगर आपने कुछ भी देखा है तो वो आपकी रियलिटी नहीं हो सकती. वो आपको जानना है कि आप कौन. जो कुछ भी आपने बाहर देखा है वो आपकी रियलिटी नहीं. ठीक है कि नहीं, बताइए. तो अब मैं जनक का 12वां श्लोक, जो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, और जनक के उद्गार चल रहे हैं. अब उसने ये रियलाइज कर लिया. ठीक है. आश्चर्य है, आश्चर्य है. मैं देह वाला यद्यपि आता न जाता हूँ कहीं, हूँ माँ अचल हूँ तद्यपि. पृथ्वी के जैसा मैं अचल हूँ. मैं तो वो नूर हूँ जो कहीं हिलता है न डुलता है. अब तक मैं क्या मानकर बैठा था. अब तक इस देह की लिमिटेशंस को मैं बंधा हुआ था. सडनली अब खुला आसमान मेरा अपना आप है. इन्फिनिट्यूड मुझसे बना है. आई एम ऑल ऑफ इट. मैं इस क्रिएशन में इतना भरपूर भरा हुआ हूं कि गुंजाइश ही नहीं है हिलने या डुलने की. मैं तो पृथ्वी जैसा अचल हूं और आसमान जैसा उन्मुक्त, फ्री. अब इस स्टेट में आप लोग आ ही गए हैं तो 2 मिनट का आप लोग ध्यान कर लीजिए. यहाँ पर आंख बंद करिए और उस इनफिनिट स्पेस को आत्मसात करिए. आई विल टेक यू थ्रू 5 स्टेप्स. ओके. आंख बंद है. आपके सामने एक इनफिनिट स्पेस अपीयर हुई है
और उस इन्फिनिट स्पेस को आप आत्मसात करिए। आपसे मिल गई है वो इन्फिनिट स्पेस। आपको एक साथ अपना अचल एस्पेक्ट और आकाशवत एस्पेक्ट महसूस होगा। See, you are absolutely still like Prithvi and you are everywhere, Akashvat. Now feel how you're feeling. क्या आपका हृदय मेल्ट हो रहा है? Feel that bang. Feel that opening up of the heart chakra. क्या आपका हृदय चक्र अलग तरह से कुछ फील हो रहा है? With more intensity? Has the intensity of the space of your heart, sensitivity, has it not risen when you have expanded yourself to include everything within you? Just be in this state. आज के बाद जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आप देखिएगा आपके भीतर करुणा, कंपैशन और सेंसिटिविटी एनहांस हो गई। The earlier in the same situation, you would not have expressed your compassion to the extent which you will now, it will become natural for you. Your compassion you will find enhanced because you have expanded yourself to include everything. This will happen automatically, and this is the blessing of this session today upon. Will that not be a very big step forward? A huge change in you? Is it not a welcome change? A welcome enhancement of your spiritual progress? Now, do namaskar to yourself and open your eyes. Now, we are taking the 13th verse. छूता नहीं मैं देह, I do not touch my body. फिर भी देह तीनों धारता. कौन से तीन देह? अन्नमय, सूक्ष्म शरीर और विज्ञानमय या आनंदमय कह लीजिए, तीन शरीर, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीन तो शरीर कहलाते हैं, है ना? छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धारता. आश्चर्य है, रचना करूं पर विश्व से नहीं वास्ता. I am not part of this material plane. Though it is because of me that this whole empire has been created. On my substratum it has been. But I am still not a part of this. Janak cannot describe his state without using paradoxical language, which is what we have repeatedly felt, that to express that divinity which I am, the self, one falls short of words unless one uses paradoxical language. Existence itself is a paradox. कृष्ण भी कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूं
पर मैं किसी में, इस भाव में होने मात्र से. How did you feel during the meditation? Your every cell was sort of पुलकित हो रहा था. It was जैसे कि एक फुरफुरी, एक फील हो रही थी, some heightened consciousness. पुलकायमान हो जाता है. ब्रह्म रंध्र तक ठंडक, कान तक सिहरन. It is such a liberating experience. मैं उसके अंदर हूं नहीं, पर सारी क्रिएशन मुझ में ही है. ब्रह्मा रचना कैसे करता है? उस चैतन्य तत्व के सिवा कोई रचना पॉसिबल ही नहीं है. उस चैतन्य मिट्टी से ही सब कुछ बना. वो मिट्टी जो है जिससे कि ये पूरा संसार की रचना हुई है, ये वो चैतन्य कॉन्शियसनेस है. इट इज नॉट अ ग्रॉस मटेरियल. See, scientists have now started creating test tube babies. We have started creating test tube babies. So there was one scientist and he was having a discussion with the spiritual master. So what he says, now we don't need your God and all. We can make our own test tube babies. We have इतना तो हमने खुद ही इजाद कर लिया. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है. This is very interesting. How are you dispensing with the divine? तुम divine के बिना कैसे अपना काम कर रहे हो? तो बोला easy. We just take a little bit of mud, soil, and we put it in the test tube. So what did the spiritual master say? First make your own mud. Mud कहाँ से तुमको मिल रही है? वो ही तो divinity है, जिसके ऊपर तुम कुछ भी कर सकते. So you cannot dispense with the divinity for creation. No science, nothing outside, nothing material can happen without the substratum of the divine. So now we understand how it is all possible, because that divinity is of another plane of dimension. That is why, while being the substratum of everything, it is still very far removed from the material plane of existence. कृष्ण उसको क्या बोलते हैं? अति परे, अति परे, अति परे. Now we are on the 14th verse. What is Janak saying? करतार हूं मैं सर्व का, मन वाणी का यह कार्य है. मन और वाणी, एक मन है और फिर सारी वाणी में सब इंद्रियां आ गई. The sense organs as well as the karma indriyas, the motor organs. फिर भी न मुझ में सर्व है. आश्चर्य है, आश्चर्य है. Wonderstruck, awestruck. This realization, it blows you. Janak has separated himself completely from the Chidabhas. Reflection, he is separated. अब मैं आपको चिदाभास के ऊपर थोड़ा सा कुछ समझा देती हूँ. चिदाभास है सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी से भरे घड़े में. What is the पानी से भरा घड़ा? मन. पानी से नहीं भरा हुआ होता तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता था ना. तो मन यहाँ नहीं होता तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था ना. वो सूर्याभास है. सूर्यभास, यहाँ पर सूर्य से ब्रह्म का मतलब है ना. हाँ ठीक. चिदाभास है सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी से भरे घड़े. सूर्य जब रिफ्लेक्ट होता है तो वह रिफ्लेक्शन भी थोड़ा यूजफुल हो जाता है. हमारी सारी फंक्शनल प्लेन की एक्टिविटीज इस रिफ्लेक्शन की ताकत से ही होती हैं. जब तक
शरीर और मन है, जब तक शरीर और मन इसके लिए रियल है, तब तक रिफ्लेक्शन होता रहेगा। उस रिफ्लेक्शन से लाइट निकलती रहेगी और हम उस लाइट में देखते कार्य करते रहेंगे। सब कार्य हमारे उस लाइट से होंगे। जनक ने उसके पार जाकर अपने सोर्स से तादात्म्य एस्टैब्लिश कर लिया है। जनक कह रहा है, मैं वह हूं जो रिफ्लेक्शन के हर एस्पेक्ट में जान फूंकता है। वह कहता है, यह जिंदगी मन और इंद्रियों के फंक्शन से चलती है, पर मैं तत्व को एनलाइवन करने का फैक्टर हूं। और यह इतना बड़ा शिफ्ट है कि मैं पूरी तरह से अचंभित हूं। आई एम वंडरस्ट्रक, ऑस्ट्रक, completely overwhelmed. This is the wow factor. Now I want to ask you, how many of you are feeling this wow factor? How many? One of you will raise your hand. Yes, Shalini. Amlaji, I have written something exactly what you are saying. Okay, let us have that. Just four lines. Why do I close my eyes when I reach the altar in the temple? Why do I close my eyes when I smell a rose? Why do I close my eyes when I hear the best music? The joy that all these experiences bring, I realize, is within. Who experiences all this and still remains untouched like a witness is the real me. Oh yes, the real me, my new find, the real me. So beautiful, Shalini. So beautiful. How well you have been your homework. And how much joy it has given you. Tell me, has it Yeah. brought immense joy, no? Unparalleled. Yes. Yeah. Padma Jiji, you also want to say something, na? No, no, nothing. Abhi, now I'm reading the 15th verse to you. नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक. I will explain to you. This will open a totally new facet in your understanding. ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय. हाँ, मैं एक केवल सत्य हूं. ज्ञान आदि तीनों काल्पनिक. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में शब्द आ रहे हैं कि नहीं? अज्ञान से जिस माही, जिसके अंदर अज्ञान से भासे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, सो मैं निरंजन देव हूं. रॉक्साना, निरंजन देव, यू हैड सेड ना. सो मैं निरंजन देव हूं. आश्चर्य है, आश्चर्य. तो व्हाट इज ही सेइंग? जनक कह रहा है कि जो उजाला दिख रहा है, जो उजाला दिख रहा है, वह उजाला नहीं है. जिससे उजाला दिख रहा है, वह असल में उजाला है. जो उजाला, the light which I can see outside, this is not the light. That tattva, because of which I can see the light, that is the real light. जो दिखाता है वह मैटर है. नहीं, सॉरी, जो दिखता है वह मैटर. जो दिखता है वो मैटर है. इज दिस क्लियर? एनीबडी हैज डाउट ऑन दिस? जो भी दिखता है वो मैटर है. शीला जी, जो भी दिखता है वो मैटर है, ग्रॉस है. लेकिन तुम क्या हो? तुम सटल हो. कितने सटल हो? कितने सटल हो कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय से भी ज्यादा सटल हो तुम. ज्ञाता का मतलब क्या है? नोअर. ज्ञाता मतलब द वन हु नोस. नोअर. ठीक है? ज्ञाता का. नाउ आई एम
explaining to you something very, very ucha. Gyata is knower. It is the subject. Geya is the object which is to be known. What is Geya? The object. Gyata is the knower and it is the subject. Geya is the object. And what is Gyan? It is not the process of knowing, because that would be a verb. है ना? But it has been converted into a noun, an abstract noun. That is knowingness. The knowingness is Gyan. It is not the process of knowing, because that would be a verb. Who becomes the knower? अभी आप देखिए, चिदाभास की बात आ गई. Who becomes the knower? When the reflection combines with the mind, चिदाभास और मन का जो कॉम्बिनेशन है, चिदाभास और मन का कॉम्बिनेशन ज्ञाता बना देता है. समझ गए? चिदाभास और मन का कॉम्बिनेशन ज्ञाता बना. अब वह जान रहा है एज अ पर्सन. तो यह पर्सन जो भी जानता है वह व्यक्ति बन जाता है. तो उसका पर्सपेक्टिव रॉन्ग हो जाता है. पर्सनहुड से जब हम कोई भी दृश्य को देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव वेरी लिमिटेड हो जाता है. वह फंक्शनल प्लेन को ही सच मान रहा है, तो रियलिटी को तो देख भी नहीं पा रहा है. ज्ञान आदि इमेजिनेशन हो गए कि नहीं? इग्नोरेंस में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय 3 डिविजन्स भी कर दिए. उस प्रकाश पुंज देव के प्रेमाइस से यह सब मिराज है. उस नूर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल कृष्ण और अर्जुन लुका छिपी खेलते थे. अर्जुन हमेशा कृष्ण को ढूंढ लेता था और कृष्ण कभी अर्जुन को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि अपना आप ही उनको सारे में फैला हुआ दिखता था. अर्जुन की अलग कोई हस्ती ही नहीं होती थी, तो वो किसको ढूंढेंगे? यू अंडरस्टैंड? जब 2 होंगे तब कोई दिखेगा ना. प्यार 2 में होता है. इसलिए कहते हैं ज्ञान ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ इज द एंड ऑफ लव. लव 2 के बीच में होता है. नॉलेज ऑफ सेल्फ इज द एंड ऑफ लव. लिख लीजिए. That is why the love of Krishna and Radha was plutonic. They had become one. They were merged in one. हम लोग जब अपने वेदांतिक मेडिटेशंस में उस ऑल परवेडिंग सबस्ट्रेटम में होते हैं, तब और कोई वहां आ सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आपने खुद महसूस करा है. तो देखिए, अष्टावक्र ने ये सब बताया क्या? नहीं. अष्टावक्र ने केवल सोचने का तरीका जनक को दिया है और सब एहसास जनक को उस तरीके को मालूम करने के बाद अपने आप हो गया. और उसने ये रियलाइज करा कि ज्ञाता या दृष्टा बनना ठीक नहीं है. Be the isness and it will put an end to all the 3. क्या चीज? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय. उसका खत्म, वो तीनों के तीनों वहीं खत्म हो जाएंगे. We see, if we want to
dissolve in installments. We will say कि मैं अभी person हूँ, I will become drishta. Here, this is the first step, second step. Now from the drishta, I will become the sakshi. But did Janak do that? No. He did not want to get dissolved in installments. He wanted jhatka. He did not want halal. हमको धीरे धीरे अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है. हम एक साथ डिसॉल्व्ड हैं. खाली इस बात के प्रति जगना है. झटके में. पद्माजी जी ने कहा था कि हाईएस्ट से शुरू करना है. उसको ये बात अपील करी. जनक एकदम अपने आप को हाईएस्ट में पहुंचाते. And now the last verse, which is a continuation of the same thought. That is why I'm completing over here. Janak is saying, अहो दुख सारा द्वैत में, दो में. अभी बात करी थी ना, दो होएगा तब तो मुझे दूसरा दिखेगा ना. दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा. यह दृश्य सारा है मृषा, फिर द्वैत सब हुआ हवा. मृषा मतलब मृग मरीचिका, मिराज. चिन्मात्र हूं मैं एक रस, मम कल्पना यह दृश्य है. मैं कल्पना से बाह्य हूं, मैं कल्पना के बाहर. आश्चर्य है, आश्चर्य. And now Janak is lamenting the duality which we all accept as natural. हम लोग उसको take for granted कर देते हैं. अपनी hypnosis को ही अपनी असलियत मान लेते हैं. अहो दुख सारा द्वैत में, वो कहता है. What is he saying? I have woken up from the mirage. I am the subtlest of the subtle. I am ever equanimous. The scene is but imagination. वो बोलते हैं ना, चिन्मात्र हूं मैं एक रस, ever equanimous. I am outside that mental activity. I am beyond it. I have transcended it. I make it happen. I am the power behind it. This is the surprise of surprises. It is unfathomable how I could have been in so much delusion. आश्चर्य है, कैसे मैंने इस गलत बात को पकड़ लिया था और अपने आप को इतना लिमिटेड मान लिया. So let us promise with ourselves that we will rise above our own limited experience of body and mind. Are you ready? Are you ready? What do you have to say? I am all ready. What will you say when I ask you, are you ready? I am already there. I'm all ready. I am all ready.